Assalamualaikum students, I am your physics teacher Harusha Chaudhary. Today we will discuss about the human eye, that is your topic in the geometrical optics chapter number 12. You are well aware about the human eye and its working and its function, everything. Here related to physics, how it works, we will discuss. This is your simple diagram of the human eye. Here in this case, you can see that the main function that is related to physics, that is your lens. Here this is your lens. Particularly that is a convex lens, that is natural lens in the eye, that is for the working purpose to clarify the image, to see the image. Is it clear? Now the other parts of that of the eyes, that is iris. The other thing is the cornea through which light enters, and then the object through which light reflects, and you can see that of the image of that object. And then the light rays, these that are the emitting rays towards that of the convex lens. And the most important thing, that is retina. Retina is the basic, you can say, the part through which you can see the image. Simple is that you have discussed about camera. There you have discussed about the film of the camera. That film is acting as the you can say that image output device. Here in this case, retina is the part, or you can say that it's the instrument that gives you the image. Is it clear? Now, when the ray of light from the object fall on that of the surface of the convex lens, what will happen? It will converge towards this direction to have the image of that object. Is it clear? Here will be your image on the retina. If the image is not exactly of that of the retina, there will be some defects. Is it clear? Image should be found on that of the retina. Is it clear? Now, what is the function of this iris? This iris is basically for that of to control the light that is emitting from that of the object. Is it clear? यहाँ जो आपकी बेटा रेज ऑफ लाइट आ रही है, इनको ये आयरिस क्या करता है, कंट्रोल करता है. आयरिस है इनसाइड दैट ऑफ द कलर्ड प्यूपल. आयरिस के अंदर क्या होता है, एक कलर्ड प्यूपल है, ठीक है, जो क्या करता है आपके पास, when there is a sharp light, you can say that intensity of the light is very much greater. What will happen? This pupil, this iris contract the pupil. ये pupil क्या करेगा, contract करेगा, और जब ये contract करेगा तो क्या होगा, radiations जो आपके पास suppose इस certain area से इतनी radiation emit हो रही है, बहुत थी, इसको जब contract करेगा तो contract करके इतने area में लेके जाएगा, तो वो जो intensity है radiations की, वो क्या करेगा, उसको कम करेगा, ताकि आपके पास बहुत glare produce ना हो. Is it clear? और आप रेटिना पे क्या करें, इमेज को प्रॉपरली ऑब्जर्व कर सके, या इमेज आपका वहाँ प्रॉपरली बन सके. Now, the same thing is कि आपके पास अगर इंटेंसिटी कम है, suppose this will happen that here you can see that if the image is like this, here this intensity, obviously it will be the less intensity. Now what will happen? This pupil will be expand. ये क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा और ज़्यादा इंटेंसिटी को क्या करेगा, गेन करेगा सर्टेन एरिया से, ताकि वो क्या करें, आपके रेटिना के जो इमेज आ रहा है वो क्या जाए, प्रोमिनेंट लाइट क्लियर है. दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन एंड वर्किंग ऑफ दैट ऑफ द ह्यूमन आई. सो यू कैन सी दैट आपके पास जो कन्वेक्स लेंस है और जो रेटिना है, इसका डिस्टेंस क्या है, फिक्स है. इज इट क्लियर? दिस डिस्टेंस इज फिक्स्ड. नाउ हाउ वी कैन जस्टिफाई कि आपके पास क्या होगा कि रेटिना वहाँ से इमेज को समटाइम क्लियर इमेज देता है, समटाइम अगर ब्लर इमेज देता है, इसको क्लियर कैसे किया जाता है. दिस यू कैन से दैट सिंपल आई साइट ग्लासेस यूज करते हो, उसको तो आप वेरी कर सकते हो, उसका नंबर चेंज कर सकते हो आप. अब जो नेचुरली आपके आई में लेंस है उसको तो वेरी नहीं कर सकते ना, तो आप डिस्टेंस चेंज कर सकते हो लेंस का, ना रेटिना का जो साइड है इसको डिस्टेंस वेरी कर सकते हो, दिस विल बी फिक्स्ड. देन हाउ यू कैन एडजस्ट दिस? इफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज फिक्स्ड, sometimes you can't see it properly, then how did you manage to see that object properly? For this purpose, there is another topic, that is
accommodation. Now, what is accommodation? Accommodation is basically you can say that adjustment of the points. How we can adjust the points? That is variation by varying the focal length. So we can say that the variation of the focal length of the focal length of the eye lens to form a sharp image on the retina. I can write it as the definition. The variation of the focal length of the eye lens, particularly that is the eye lens. Is it clear? The variation of the focal length of the eye lens to obtain a sharp image, sharp or proper image. Is it clear? On that of retina. That is called accommodation. Is called accommodation. Is it clear बेटा? ये क्या आपके पास accommodation आ जाता है ना? हम इसको किस तरह से justify करते हैं? Simple is that if I observe an object at some distance, suppose मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देती हूँ. From this distance, I can see this board or this board writing. Suppose मैं इसको अगर मज़ीद करीब जाके देखती हूँ तो मुझे ब्लरनेस, एग्लियरनेस प्रोड्यूस होते फील होगी. मुझे प्रॉपर नजर नहीं आएगा क्योंकि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है. उस डिस्टेंस से अगर आप कम रखेंगे ऑब्जेक्ट को तब भी आपको वो आई जो है वो प्रॉपरली इमेज आपको ऑब्जर्व करके नहीं देगा. अगर उस डिस्टेंस से बहुत ज़्यादा ग्रेटर कर देंगे तब भी आपको ऑब्जेक्ट क्लियरली नजर नहीं आएगी. For a normal eye, there is a particular distance. We will discuss after that. Now, if I can see this properly, then well and good. If I can't see this, then what will I do? Obviously, I will move my eye with some contraction or relaxation. I will expand. Basically, आप जब समटाइम ऐसा होता है कि अगर आपको ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रही ऐसे प्रॉपर अपने फ्रंट पे रखते हो, अब अपने आई को क्या करते हो? यू कैन से दैट आप एक्सपेंड करते हो. ठीक है, आप ज़्यादा गौर से देखने की कोशिश करते हो. ठीक है, समटाइम अपने आई को आप क्लोज करते हो टू सी द ऑब्जेक्ट. अगर वो ज़्यादा आपके पास क्या है, इंटेंसिव बीम आपके पास आ रही है ऑब्जेक्ट की. ठीक है, वो बेसिकली क्या होता है? वो अकोमोडेशन होता है. और वो अकोमोडेशन किस चीज़ का हो रहा होता है? दैट इज ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस. बेसिकली वो अकोमोडेशन क्या होता है? दैट इज रिलैक्सिंग और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दैट ऑफ द लेंस. सपोज दिस इज योर लेंस. Is it clear? If you can't see the object properly, then what will happen? You can see that आप इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे? आपकी सेंटर ऑफ जो कर्वेचर है आप ये क्या करेगा? रिलैक्स करेगा. ठीक है, फोकल लेंथ आपके पास जब भी ये रिलैक्स करेगा, सपोज ये आपके पास क्या है? ये सिंपल है. इसको मैं अगर ये दैट इज इन द रिलैक्सिंग फॉर्म तो ये क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा मजीद. सपोज ऐसे जब ये एक्सपेंड करेगा तो आज के क्या होगा? ऑब्वियसली इसका रेडियस चेंज हो रहा है. जब रेडियस चेंज होगा तो रेडियस चेंज होने से क्या होगी? इसकी फोकल लेंथ चेंज करेगी ना. इफ आर डिक्रीजेस इसकी फोकल लेंथ भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी. दे हैव रिवर्स रिलेशन विद दैट ऑफ द फोकल लेंथ. थिकनेस या रेडियस की बात करते हैं तो आपके पास जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस के साथ आपके पास रिलेशन में आता है. ठीक है, आई थिंक r/2 होता है. ठीक है, दिस आपके पास क्या है? यहाँ पे क्या चीज़ आप डिस्कस कर रहे हैं कि रेडियस और फोकल लेंथ का रिलेशन. ठीक है, तो ऑब्वियसली आपके पास क्या करेगा? फोकल लेंथ चेंज करेगी. यहाँ पे रेडियस से निकाल रहा है तो उसका फोकल लेंथ भी क्या करेगा? चेंज करेगा. सो द बेसिकली अकोमोडेशन पर्पस इज रिलेटेड टू दैट ऑफ द चेंज ऑफ द फोकल लेंथ. सो यू कैन से दैट कि आपके पास क्या करेंगे? या इसके अगर मैं कॉन्ट्रैक्शन हूँ तो कॉन्ट्रैक्शन किस तरह आ जाएगी? ये फोकल लेंथ है आपके पास, फोकल सॉरी लेंथ है, ये इस फॉर्म में आ जाएगा. अब इसकी क्या हो जाएगी? देखिए इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? थिकनेस क्या है इसकी? कम होगी ना. ठीक है, थिकनेस कम होगी तो अल्टीमेटली आपका फोकल लेंथ इंक्रीज करेगा. ठीक है, अब इस तरह से आपके पास क्या करेगी? ये रेडिएशन जब इंटर होगी तो आपके पास ये थिकनेस और जो आपके पास इंक्रीज और डिक्रीजमेंट ऑफ द फोकल लेंथ है
ये जो रेडिएशन आ रही है आपके पास, लाइट आ रही है टू सी द इमेज, वो आपके पास क्या करेगी, इंटरेस्ट टुवर्ड दैट ऑफ द आई क्या करेगा, वेरी करेगा, जिसकी वजह से आपके ऑब्जेक्ट क्या करेगी, थ्रू अकोमोडेशन प्रॉपर इमेज आपका नजर आएगा। दिस इज ऑल अबाउट अकोमोडेशन। नाउ I have discussed about that of the distance of the object from where you can see that object properly. आई से वो ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस में होना चाहिए, ठीक है। इन डिस्टेंसेस को कंसीडर करते हुए आपके पास दो तरह के डिस्टेंस की बात आती है। एक आपके पास होता है नियर पॉइंट और सेकंड वन होता है आपके पास फार पॉइंट। दैट इज नियर पॉइंट, कंप्लीटली टेल यू नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। सिंपल ये वर्ड्स बताते हैं कि आपके पास नियर पॉइंट इज द मिनिमम डिस्टेंस, यू कैन से दैट मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस और फ्रॉम आई, ठीक है। दैट इज नियर पॉइंट को डिफाइन करें तो वो क्या है आपके पास, द मिनिमम डिस्टेंस of the object from an eye to have a clear or sharp image of that object. You have same definition in the book. Maybe the words will be the same, but concept will be the same. Okay. Now this is the definition of the near point. That is the minimum distance of the object. You can say that from that of the eye to have a clear or a sharp image. Suppose I have this object and you can say that this is the writing of that object. There is some particular distance from me and this board. Why? To see the clear image. If I vary this distance continuously, so what will happen? At some distance, and you can say that unfavorable distance, the writing on the board will not clear to me. Is it clear? Because there is particular distance required. Minimum distance आपकी object का और eye का जो होना चाहिए वो कितना है? That is 25 centimeter. Your object should be 25 centimeter distance from your eye to see a clear image or to see the proper sharp image. This is for normal eye without any defect. Means आपकी eye में अगर means आपकी near sightedness या far sightedness, near sightedness या far sightedness means कि आपकी दूर की या करीब की नज़र weak नहीं है, then normal for a normal human eye you can say that in an adult age that is 25 centimeter is the normal near distance, ठीक है। इससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम से कम ये डिस्टेंस आपके पास जहाँ से आप क्या कर सकते हो, किसी भी इमेज को प्रॉपरली व्यू कर सकते हो या इमेज आपके ऑब्जेक्ट का प्रॉपरली बन सकता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज फार पॉइंट एंड दिस नियर पॉइंट वेरी विद द एज। यू कैन से दैट विद द पैसेज ऑफ टाइम सम टाइम जो आपके पास एजेड पर्सन्स होते हैं उनका क्या है आपके पास, दैट इज उनकी करीब की नज़र वीक होती जाती है, ऐसा ही है ना, ठीक है। तो उनका जो नियर पॉइंट है वो वेरी करता जाता है, ठीक है। वो 25 सेंटीमीटर में नहीं, वो बहुत नियर साइटेडनेस में हो सकती है, फॉर साइटेडनेस, ठीक है। उसमें क्या होता है वो 25 सेंटीमीटर में नहीं, समटाइम आपने देखा होगा जो भी एजेड पर्सन है, समटाइम कोई हम नॉर्मली इस डिस्टेंस तक कोई ऑब्जेक्ट न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, सपोज वो विदाउट ग्लासेस अगर पढ़ेंगे तो थोड़ा डिस्टेंस में रख के पढ़ेंगे। क्यों? कि वहाँ उनका वो जो नियर पॉइंट है वो वेरी कर रहा है विद द एज, वो नियर पॉइंट उनका विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज कर गया, ठीक है। यू कैन से दैट विद द 40 एज वो हो सकता है 50 सेंटीमीटर चला गया हो, यस अप टू सो। फिर द बेसिक पर्पस टू टेल यू अबाउट दिस दैट कि आपके पास क्या है, विद द पैसेज ऑफ टाइम नियर पॉइंट वेरी करता है, इंक्रीज करता है समटाइम, ठीक है। नाउ व्हाट इज फार पॉइंट? द फार पॉइंट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस। मिनिमम तो हमने देख लिया ना, कम से कम कितना डिस्टेंस होना चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना डिस्टेंस होना चाहिए वो क्या आपके पास कहलाता है, दैट इज फार पॉइंट। द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड दैट ऑफ द आई, यू कैन से दैट फ्रॉम दैट ऑफ द आई सो दैट इट प्रोड्यूस अ शार्प इमेज। Definition is the
maximum distance of the object from an eye to have a sharp image. This is called far point. Now far point have no particular distance as that of the near point. तो इसमें आप वेरी कर सकते हैं, आपके पास भी कोई भी डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है. इट डिपेंड्स अपॉन द you can say that the age of the person, or you can say that the eye quality of that of the person and that of the object quality, how the object is clear at a particular distance, so that if you increase that of the distance it will be more clear or blur. Okay. अब ये आपके पास क्या जाता है, far point. This is all about the human eye, accommodation, then near and far point. Thank you students.